Hello everyone. So in today's video we are going to discuss all the croc questions which came from 21st June till 25th June. So I am going to discuss all the questions, like most of the questions which I know that these questions already in the exams. So because I already gave my exam and I know which questions is in the question paper. So let's start from the first question because every person have different questions and different uh, each person have different questions in the exam. So I discussed with my friends also and we तो मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 26-year-old woman complains of cramping, abdominal pain, diarrhea with a significant amount of mucus and blood. Means here the blood is the diarrhea is with blood, so mucus and blood is there, and the fever is also there, like 37.5 38 degrees Celsius. Her skin and mucus are pale. The body type is asthenic. Palpation detects pain along the large intestine, and on the colonoscopy it reveals edematous wall of the rectum and sigmoid colon. And erosions, small ulcers are there, mucus with blood in the lumen. And what is the likely diagnosis of this question? So first of all, whenever on the screen there is a question, we have first just go through all the options and think that okay, I have to around only these options. Like options were dysentery, enteritis, Crohn's disease, cancer of the large intestine, and non-specific ulcerative colitis. So it means like inflammatory bowel disease may be also there. So here first I have to see that ulcers are there. So from ulcers we can all easily see that it's maybe ulcerative colitis. And here the on the colonoscopy also the rectum and sigmoid colon is involved, because in Crohn's disease the ileocecal junction is mostly involved. In the Crohn's disease ileocecal junction mostly involved, while in the ulcerative colitis colon and rectum part mostly involved. Colon and rectum part, and these parts were spared in the Crohn's disease. मीन्स Crohn's disease में colon और rectum involved नहीं होता है, तो यहाँ से हम रूल आउट कर सकते हैं हाँ भाई Crohn's disease नहीं है. तो नॉन स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है क्योंकि अल्सर्स हैं और कोलोन और रेक्टम इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पे एडिमेटस भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फीवर भी इन्वॉल्व है. इसका मतलब कि नॉन स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस इसका आंसर है. और ये क्वेश्चन क्रोक में आया था, ये 23 मई में भी आया था और ये जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये वाला एक क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला मेरे क्वेश्चन में नहीं था, मेरे पेपर में नहीं था, बट ये मेरे फ्रेंड्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें देखो, इसमें है हिप जॉइंट है, फ्रैक्चर है, नेक फ्रैक्चर है फीमोरल का, और फीमोरल का थर्ड फ्रैक्चर है और हिप डिसलोकेशन है. तो हमने ऑप्शन पढ़ लिए, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है. तो उस क्वेश्चन में आप देखो 64 ईयर मेल है, वो गिर गया है लैंडिंग ऑन दिस लेफ्ट साइड की तरफ गिरा है. शॉर्टनिंग ऑफ द लेफ्ट लिम्ब, उसका लेफ्ट लिम्ब छोटा लग रहा है, एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप ऑब्जर्व हुई है. तो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि हिप की अगर दो लोकेशन हो सकती है, दो रोटेशन हो सकती है, या तो एक्सटर्नल रोटेशन हो सकती है या फिर इंटरनल रोटेशन हो सकती है. तो जब भी एक्सटर्नल रोटेशन होती है, तो एक्सटर्नल रोटेशन जब भी होती है तो उसमें हमारे फिमोरल बोन इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि इंटरनल में डिसलोकेशन का डर रहता है. तो इंटरनल में हिप डिसलोकेशन होती है. तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर इंटरनल रोटेशन मेंशन होता है तो हमेशा आंसर हिप डिसलोकेशन होता है, और एक्सटर्नल रोटेशन होता है तो हमेशा आंसर फिमोरल होता है. तो आप इसमें फिमोरल के ऑप्शन देखो, इसमें फिमोरल नेक फ्रैक्चर है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिमोरल नेक फ्रैक्चर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन हुई है वो हुई है एक्सटर्नल रोटेशन. तो एक्सटर्नल रोटेशन हमेशा फिमोरल में होती है और इंटरनल हिप में होती है. इसको रिमेंबर करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हम हिप लिखते हैं तो उसमें सेकंड वर्ड आई आता है, मतलब कि इंटरनल रोटेशन. तो हिप जब आंसर होगा जब इंटरनल रोटेशन होगी, और फिमोरल में सेकंड वर्ड ई आता है, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन पे किसका होगा? फिमोरल का फ्रैक्चर होगा. तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था अभी 21 जून से लेके अब तक के क्वेश्चंस में. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मेरे वाले पेपर में आया था शायद. तो इसमें लिखा हुआ है कि फीटल के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, आरडीएस हो रखा है. तो जब भी बच्चे के आरडीएस होता है और ये बच्चा 32 गेस्टेशन में, मतलब 32
उसकी मम्मी 32वें महीने में उस बच्चे के RDS हो रहा है। इसका मतलब कि जो डिलीवरी है वो करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी करने से अगर कुछ मिनट पहले भी अगर हमारे पास 15-20 मिनट कितना भी टाइम होता है तो हम हमेशा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन। हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बेबी के जो लंग्स है वो मैच्योर हो सके और उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो लंग मैच्योरिटी के लिए हम डेक्सामेथासोन देते हैं हम बेबी को। तो यहाँ पे 32 वीक्स हुआ है, फिर RDS हुआ है, तो RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम कौन सा देंगे, हम देंगे डेक्सामेथासोन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, तो अगर आप अभी दोबारा से क्रोक देने की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए विद राइट आंसर्स, क्योंकि बहुत सारी आंसर की निकली हुई है और वो उसमें अधिकतर गलत ही आंसर्स मार रखे हैं। तो ये वाले आंसर्स आप बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये वाले एग्जैक्ट राइट आंसर्स के साथ हैं, इसलिए। अगला है 4th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आया है, बट किसी और के पेपर में ये शायद नहीं आया होगा, किसी के भी पेपर में, पर फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो इसमें जो है, हम सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। व्हाट मार्कर ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इज टू बी पॉजिटिव। तो वायरल हेपेटाइटिस का मार्कर जो है वो हमें बताना है। ये बहुत इजी है। ये HBS सरफेस एंटीजन होता है, ये A के लिए होता है, ये B के, ये वाला जो HBC जो कोर एंटीजन होता है, वो हमारा वायरल हेपेटाइटिस का मार्कर होता है, और ये E के लिए होता है, और ये साइटोमेगालोवायरस है। तो इसमें वायरल हेपेटाइटिस के लिए कौन सा है, कोर एंटीजन। तो आंसर हो गया anti-HBC इम्यूनोग्लोबुलिन M। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे पेपर में आया था, जो मैंने 21 जून को जो मैंने एग्ज़ाम दिया, 22 जून को जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था। इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो एक बंदा है वो गिर गया है, लैडर से, सीढ़ियों से गिर गया है, सीढ़ी से गिर गया है, 2 मीटर की हाइट से गिरा है, उसको इमरजेंसी मेडिसिन में लेके गए हैं, और वहाँ पे उसको लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ होगा L1 L2 पे। द ब्लड प्रेशर इज इतना है, द पल्स इज इतना है, वट इट मस्ट बी प्रोवाइड टू द पर्सन एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। मतलब जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे क्या करेंगे। तो देखो, जब भी किसी का फ्रैक्चर होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस फ्रैक्चर वाले पोर्शन को हम हिलाएं ना बिल्कुल भी। जैसे कि हाथ में, किसी के हाथ में फ्रैक्चर होता है तो हम उसको एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं और बिल्कुल उस पोर्शन को हिलने नहीं देते हैं, ताकि वो मतलब टेढ़ी बोन्स ना जुड़ जाएं आपस में, या फिर कोई ज़्यादा फ्रैक्चर ज़्यादा सीवियर ना हो जाए केस। तो जब भी, अब तो इसके वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है यार, पीठ में फ्रैक्चर हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल सीधा लेटा के रखना है। इसको ऐसे उठाते टाइम, जब एम्बुलेंस में भी हम पेशेंट को लेके जाएंगे तो हम उसको जो स्ट्रेचर होता है उस पर भी हम इसको ऐसे हिला डुला के, या फिर ऐसे एक ही बंदा उठा के इसको उस स्ट्रेचर पे नहीं रख सकता है, इसको बिल्कुल सीधा रखना होता है। तो और इसको दर्द भी बहुत हो रहा होगा भाई, कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर में कितना ज़्यादा पेन होता है। फ्रैक्चर को हम ऐसे ही तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई बंदे के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो माइट बी इट अ केस ऑफ फ्रैक्चर। तो यहाँ पे भी फ्रैक्चर का केस हो सकता है, तो इसलिए हम इसको पेन किलर देंगे। तो इसमें आंसर क्या देंगे, एनाल्जेसिक, और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हॉस्पिटल में, वो भी हार्ड स्ट्रेचर पे। किस पे स्ट्रेचर पे, हार्ड वाले स्ट्रेचर पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, जैसे वर्टिब्रल एनेस्थीसिया ट्रांसपोर्टेशन इनटू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट। भाई ट्रांसपोर्टन करने से पहले उसने पूछा है कि एट द सीन, मतलब कि तुम एट द सीन क्या करोगे, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पे क्या करोगे, ये पूछा गया है। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस आती है, जहाँ पे वो आते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन हार्ड स्ट्रेचर पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एट द साइट हम एनाल्जेसिक का इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि उसको पेन कम हो, और हम उसको हार्ड स्ट्रेचर पे भेज सकते हैं। देखो ऊपर वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सिटिंग पोजीशन। भाई सीट बैठेगा कैसे बंदे को इतना दर्द हो रहा है, उसके तो हड्डी टूटी हुई है, तो उसको तो लेटाना है, वो भी हार्ड स्ट्रेचर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 55 ईयर ओल्ड वुमेन है। पहले ऑप्शन पढ़ लो भाई, ये वाला क्वेश्चन शायद आया है, रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, पर ये जैसे होता है ना कि डिफरेंट बंदों के पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ था। तो ये वाला मेरे पेपर में नहीं डाला हुआ था, पर मेरे फ्रेंड्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज इन दिस केस। तो और ऊपर की 2 लाइन पढ़ो, हर हिस्ट्री इंडिकेट दैट कॉर्न इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स इन हर डाइट। मतलब उसने कॉर्न खाया है, कॉर्न में क्या होता है,
कौन खाया है उसने। अब उसके बाद पढ़ो, मेन कंपोनेंट द वुमेन रेयरली ईट्स अदर वेजिटेबल्स, वो बाकी सब्जियां बहुत कम खाती है। एंड लेग्यूम्स एंड डज नॉट ईट मीट और फिश, और वो मीट और फिश भी नहीं खाती है, लेग्यूम्स भी नहीं खाती है, दाल वाले भी कुछ भी नहीं खाती है, और सब्जी भी नहीं खाती है। और उसके कंप्लेन क्या क्या है, उसके डायरिया हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, उसकी स्किन जो है वो उतर रही है, ओपन जहाँ जहाँ से वो मतलब जहाँ जहाँ से ओपन एरिया है बॉडी पार्ट, जैसे नेक है, हैंड है, फीट है, वहाँ से उसकी पीलिंग अप हो रही है और उसका पिगमेंटेशन भी हो रहा है। तो उसने क्या खाया है भाई, उसने खाया है कॉर्न। तो कॉर्न वो बहुत खाती है, ठीक है। अब कॉर्न में क्या होता है, कॉर्न में होता है हमारा प्लेग्रा। कॉर्न से क्या होता है हमारा प्लेग्रा, क्या होता है कॉर्न से हमारा प्लेग्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेग्रा, ठीक है। क्योंकि जो कॉर्न होता है वो होता है हमारा ठीक है। तो कॉर्न में होता है हमारा विटामिन B3, इसमें विटामिन B3 बड़ा कम होता है। तो इसमें B3 की डेफिशिएंसी हो गई होगी। किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, B3 की डेफिशिएंसी हो गई होगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप अपना, हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है, लेट मी सी ये किसके पेपर में आया था या नहीं आया था। तो वुमेन ट्रीटेड है एनीमिया के लिए, शी हैड मिसकैरेज विद अ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके जो है मिसकैरेज हुआ था और उसके पोस्टपार्टम हेमरेज भी हुआ है, क्योंकि इसके जो है ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। वुमेन के उसके बाद क्या है, मेमोरी डिटोरेशन हो गया है, थकान ज़्यादा हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि उसमें जो है डेफिशिएंसी हो चुकी है भाई। फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड, इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है, मतलब कि वो शॉक की तरफ है, उसका पल्स रेट इतना है, हाइट इतनी है, वेट इतना है, जिनाइटल हाइपोप्लेजिया भी हो रखा है। वट मेडिसिन, तो इसमें जो है इस बंदे की, इस वुमेन के हो गया है सीहान सिंड्रोम। कैसे भैया आइडेंटिफाई किया हमने, क्योंकि सीहान सिंड्रोम कब होता है, सीहान सिंड्रोम होता है पोस्टपार्टम हेमरेज में, मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है या फिर मिसकैरेज के बाद जो बच्चा निकल जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, तब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उससे होती है हमारी सीहान सिंड्रोम। और सीहान सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हम देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। हम क्या देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। और सीहान सिंड्रोम को जब हम चेक करते हैं तो इसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं। कभी भी सीहान सिंड्रोम ये मत सोचना कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है तो पिट्यूटरी नेक्रोसिस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के वहाँ पे हो जाएगा, तो हम इसके लिए पिट्यूटरी का MRI कर देते हैं। नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें गोनाडोट्रोपिन का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में है और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में है कि इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं सीहान सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में रिपीट था। इसमें क्या बोला है कि एक बंदी है 65 ईयर ओल्ड का एक मैन है, उसके अक्यूट एंटीरियर MI इन्फेक्शन हुआ है उसके MI का, एंड एस्फेक्सिया अटैक भी हो रहा है, उसके डिफ्यूज साइनोसिस है, उसका हार्ट रेट 100 है, ब्लड प्रेशर इतना है, ऑस्कल्टेशन डिटेक्ट्स न्यूमरस हेट्रोजिनस मॉइस्ट क्रैकल्स इन द लंग्स, मतलब उसके लंग्स में जो है क्रैकल्स का साउंड आ रहा है। तो उससे क्या हुआ होगा भाई, क्रैकल्स लंग्स में क्यों आए होंगे, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लूइड गया होगा। अब लंग्स में फ्लूइड क्यों चला गया, उसके तो MI था, MI से फ्लूइड का क्या लेना देना, वो भी लंग्स के अंदर, तो MI का फ्लूइड से लेना देना है, वो भी लंग्स में। क्योंकि जब MI उसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो मान ले उसके कोई दिक्कत हुई हार्ट की वजह से, तो हार्ट में जो है ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट में जो ब्लड है वो पल्मोनरी एडिमा में जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे हार्ट में ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे एट्रियम में ओवरफ्लो हो जाता है, तो एट्रियम से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में भी ओवरफ्लो होगा। जब पल्मोनरी वेन में ओवरफ्लो होगा तो वो लंग्स में जाती है पल्मोनरी वेन, तो वहाँ पे जो है ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, पल्मोनरी एडिमा।
MI हुआ है, MI के बाद उसके लंग्स में क्या सुनाई दे रहे हैं, क्रैकल्स और हेट्रोजीनस मॉइस सुनाई दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसके पल्मोनरी एडिमा होगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये रिपीटेड है, ये लगभग हर बंदे के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, मेरे पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वही MRI में क्या है, कोई सेरिब्रल पैथोलॉजी नहीं है, थायरोट्रोपिन लेवल क्या है, नॉर्मल रेंज में है, प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या है, वो बढ़ा हुआ है। इसमें कौन सा लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन। लेकिन इसमें MRI जब हमने करा ब्रेन का तो कोई डिफेक्ट नहीं मिला, मतलब पिट्यूटरी में दिक्कत नहीं है, इसमें प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा आ रहा है भाई, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा आ रहा है, मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो गया होगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। सिहान सिंड्रोम क्यों नहीं हुआ इसके, क्योंकि उसके जो MRI किया हमने सेरिब्रल पैथोलॉजी, उसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिली, ब्रेन के MRI में कोई भी पैथोलॉजी हमें डिटेक्ट नहीं हुई। और अगर PCOD होता तो PCOD में तो ओवरी की हिस्ट्री देते, भाई ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देते, पर ऐसा नहीं हुआ। पिट्यूटरी फिर से कोई MRI जब ब्रेन का करा, उसमें कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। और हाइपोथायरॉयडिज्म होता तो भाई बच्चे का वेट बहुत, फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता, उसके हाइपोथायरॉयडिज्म वाले कैरेक्टर्स आते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, केम टू अ डॉक्टर विद कंप्लेंट्स ऑफ मिल्क डिस्चार्ज, उसके मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो मेंस्ट्रुएशन को अपोज करता है ना। तभी तो कहते हैं कि जब फीमेल प्रेगनेंसी के बाद जब फीमेल बच्चे को दूध पिलाने लग जाती है, उसके कुछ महीनों तक उसको जो है पीरियड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसके प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है ना उस टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। तो प्लीज़ नेमिया, ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे रिपीट हुए हैं हमारे 21 जून के पेपर में। तो प्लीज़ याद कर लो, ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और सब बच्चों के पेपर में आए हैं अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं। तो ये जो है अब क्रोक दोबारा जो बच्चे देंगे उनके पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 102%। तो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑप्शन पढ़ लो। राइट साइडेड पायोसाल्पनिक्स, क्रोनिक एडिनोक्साइटिस, अपोप्लेक्सी ऑफ द राइट ओवरी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और फिफ्थ क्वेश्चन है पेडिकल टोर्जन इन द सिस्ट। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ो, इसमें पहले लास्ट में हमें बताना है कि डायग्नोस क्या किया है, उससे ऊपर थोड़ी 2-3 लाइन छोड़ के और पढ़ लो। लास्ट मेंस्ट्रुएशन उसके कब थे, 12 दिन पहले थे। 12 दिन पहले अगर किसी के लास्ट मेंस्ट्रुएशन है तो वो दोबारा से प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहीं पे हट गया हमारा ऑप्शन में कि ये तो हो नहीं सकता भाई, 12 दिन पहले ही गई है, 14 दिन मतलब कि अगर किसी के मेंस्ट्रुएशन 12 दिन पहले ही गए हैं तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा भाई, तभी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो वो ये ऑप्शन से हट गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला लाइन पढ़ो, वेजाइनल एग्जामिनेशन सो दैट हर यूट्रस जो है वो नॉर्मल शेप का है एंड पेनलेस है। यूट्रस जो है वो नॉर्मल शेप का है, उसमें कोई पेन नहीं है। द अपेंडेजेस ऑन द लेफ्ट आर स्लाइटली इनलार्ज, जो अपेंडेजेस हैं ये वाले अपेंडेजेस का थोड़ा सा इनलार्ज है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड का, सॉरी मैंने राइट साइड का बनाया, यहाँ वाला थोड़ा अपेंडेजेस जो है वो इनलार्ज्ड है एंड पेनफुल। यहाँ पे जब हम प्रेस करके देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, पेनफुल है। पोस्टीरियर फोर्निक्स इज ओवर हैंगिंग टेंस एंड शार्पफुल पेनफुल, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कर रहा है। तो या तो ये हो सकता है भाई उसकी जो ओवरी है लेफ्ट साइड की, वो उसके उसमें क्या हो गया होगा भाई, टोर्जन हो गया होगा, या ये मतलब कि वो अबाउट टू रप्चर भी हो सकती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि उसकी जो ओवरी है लेफ्ट साइड की वो अबाउट टू रप्चर है, तो एपोप्लेक्सी ऑफ द लेफ्ट ओवरी, यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये गलती से इन्होंने राइट लिखा हुआ है, तो एपोप्लेक्सी ऑफ द लेफ्ट ओवरी इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला भाई, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था बट फिर भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ड्राई कफ है, मसल पेन है, फीवर है, सोर थ्रोट है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, द रेस्पिरेशन हार्श है, ल्यूकोसाइटोसिस 10 है, ल्यूकोसाइट लेफ्ट शिफ्ट है, चेस्ट एक्सरे इंटेंसिफाइड पल्मोनरी लंग पैटर्न। मतलब कि जब भी आप देखोगे जब भी ल्यूकोसाइट लेफ्ट शिफ्ट होता है तो उसमें मतलब कि इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके हम जो है लो इंटेंसिटी फोकल शैडो इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द राइट लंग, जो राइट लंग है हमारा उसमें फोकल शैडोज भी दिख रही हैं। ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन हम देंगे भाई, इससे साफ पता चल रहा है उस बंदे का क्या हो गया है, न्यूमोनिया।
पेशेंट के क्या हो रखा है हमारे निमोनिया, और निमोनिया में हम कौन सी ड्रग देते हैं, पेनिसिलिन। कौन सी ड्रग देते हैं सबसे पहले हम, पेनिसिलिन। और जब अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तब हम क्या देते हैं, मैक्रोलाइड्स। लेकिन यहाँ पे कोई पेनिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी ड्रग्स देंगे, तो आंसर होगा मैक्रोलाइड, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्या आंसर होगा इसका, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। इसी से मुझे याद आया मेरे पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें कहा था कि उसके पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो रखा है। क्या हो रखा है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो रखा है, तो कौन सी ड्रग देंगे हम, तो अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो हम देंगे मैक्रोलाइड्स, ये उसका आंसर होगा। प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लो क्योंकि ये रिपीट था, और ये वाला तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं, बट इसका आंसर होगा मैक्रोलाइड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, द पेशेंट सन हैज़ फिल्ड अ लॉ सूट आफ्टर हिज मदर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसने भाई केस किया है, उसकी मम्मी किससे मर गई, ब्रेस्ट कैंसर से, ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द पास्ट शी सर्वाइव्ड अ स्ट्रोक एंड हैड डायबिटीज। उसकी मदर के क्या हिस्ट्री थी, स्ट्रोक की हिस्ट्री थी, और उसकी मम्मी डायबिटिक की पेशेंट थी। एग्रेसिव कैंसर थेरेपी वॉज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर हर, पर उस पर एग्रेसिव कैंसर थेरेपी नहीं करा सकते थे क्योंकि उसके डायबिटीज भी थी उसकी मम्मी के। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन, उसकी मम्मी के बहुत पेन होता था, बट डॉक्टर्स एट द आउट पेशेंट क्लिनिक वर अनेबल टू ऑब्टेन इवन 1 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन फॉर हर ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलीग्राम का मॉर्फिन भी उन डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रहा था। तो किस तरीके की थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे उसकी मम्मी की, तो भाई उसकी मम्मी की देखभाल करने के लिए हम पैलेटिव मेडिकल केयर का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसका आंसर आप रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, तो पैलेटिव मेडिकल केयर, तो किस चीज़ का ट्रीटमेंट, पैलेटिव मेडिकल केयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे पेपर में तो बिल्कुल नहीं आया था, और मुझे मैंने जिनसे डिस्कस किया उनके पेपर में भी ये नहीं था, पर हो सकता है किसी और बंदे के पेपर में आया हो, क्यों, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग पेपर था। तो इस क्वेश्चन का क्या है, फोरेंसिक ऑटोप्सी हुई है एक 59 ईयर ओल्ड मैन की जो सडनली डाइड एट होम without signs of violent death, shows pink skin and mucosa, liquid bright red blood, bright red plethoric internal organs हैं। फोरेंसिक में डिटेक्ट हुआ है कि भाई उसकी टॉक्सिक की वजह से, इथेनॉल की वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल 55% था। अब उसके में 55% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी डेथ का कारण, मेन कारण क्या था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था उसके ब्लड में मिला। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब कार्बन जो है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा, जब बंदे में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो ये वाला कार्बन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की ज़्यादा कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए इस बंदे का मरने का कारण क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या कारण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली लाइन पढ़ो भाई, आफ्टर सेमोलिना, सेमोलिना खाते ही उसको पक्का डायरिया वायरिया कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ये इसका आंसर हो जाता है सीलियाक डिजीज। इसका आंसर क्या हो जाता है, सीलियाक डिजीज। आँख बंद करके क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अब हम पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, पर ये मेरा तरीका था क्वेश्चन को, मतलब मैंने जैसे याद किए थे कि भाई हाँ सेमोलिना खाया है, सीलियाक डिजीज़ हुई होगी, क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी होती है सीलियाक डिजीज़, जिसमें सेमोलिना में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। तो जैसे ही सेमोलिना इंट्रोड्यूस किया उसकी डाइट में 1 साल के बच्चे में 2 महीने के लिए, तो उसमें क्या प्रेजेंटेशन आई, एपेटाइट कम खाने लग गया, इरिटेबिलिटी होने लगी, बॉडी मास बहुत ज़्यादा कम होने लग गया, फाउल स्मेलिंग का स्टूल्स आने लग गया, मतलब कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता था, जितना खाता था सब बाहर निकल जाता था। पेल स्किन हो गई, ड्राई स्किन है, हेयर ब्रिटल है, abdomen डिस्टेंडेड है, while the limbs are thin, stool test shows high level of fatty acid। उसके स्टूल में क्या दिख रहा है, फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस, तो भाई सेमोलिना खाने के बाद ही तो आया है, सेमोलिना में क्या ज़्यादा है, ग्लूटेन ज़्यादा है, तो ग्लूटेन की डिजीज़ कौन सी होती है, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, जिसका दूसरा नाम क्या है, सीलियाक डिजीज़। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीलियाक डिजीज़। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था, याद कर लेना। अब है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर की, ये वाला एक्चुअली 23 मई के पेपर में भी आया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसका आंसर गलत मार रखा था, ये मार रखा था भाई। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हो सकता है, इसका आंसर विटामिन के होगा। खुद ही सोचो भाई, RH इनकम्पेटेबिलिटी कब होती है, जब जो फीमेल है उसका ब्लड जो है RH नेगेटिव हो और जो बच्चा है उसका RH पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, मदर का क्वेश्चन में RH पॉजिटिव दिया हुआ है, तो RH इनकम्पेटेबिलिटी कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो कृपया करके इस क्वेश्चन का आंसर ये तो बिल्कुल ना मारे, ये वाला तो इसका आंसर है ही नहीं, तो प्लीज़ इसको भूल जाए। और इसका आंसर जो है वो है विटामिन के। क्यों, अब देखो भाई,
लड़की है उसका वेट इतना है, वो बोर्न हुई है घर पे ही, मदर की तीसरी प्रेगनेंसी है। तीसरे दिन, प्रेगनेंसी के तीसरे दिन उसके स्मॉल हेमरेजेस हुए हैं अम्बिलिकल वुंड में, एज वेल एज रेड डॉट्स ऑन द स्क्लेरा ऑफ द चाइल्ड्स आई। चाइल्ड की आई में भी रेड डॉट्स के स्क्लेरा पड़े हुए हैं, मतलब स्क्लेरा रेड डॉट के, रेड डॉट है स्क्लेरा पे। जो वाइट पोर्शन आँख का होता है वो स्क्लेरा होता है, उसमें क्या है, वाइट रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं। मदर वॉज नॉट रजिस्टर्ड फॉर प्रीनेटल केयर चेकअप, शी इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी एज नीडेड। फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेक्ट सब कंजक्टाइवल हेमरेज। फिजिकल क्या हुआ है कि भाई सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस दिखाई दे रही हैं। तो हीमोग्लोबिन उसका लेवल कितना है हीमोग्लोबिन का, 155 ग्राम, ठीक है। चाइल्ड ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। व्हाट इज द ऑप्टिमल टैक्टिक्स टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन। भाई उसके हैमरेज हो रहा है, हर जगह हैमरेज 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 बताया, कहीं कोई वो नहीं बताया कि भाई उसके जॉन्डिस वोंडिस हो गया, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएंगे। RH इनकम्पेटिबिलिटी है नहीं भाई, तो उसके विटामिन K डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि उसके क्लोटिंग फैक्टर की दिक्कत हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन K। उसको विटामिन K दे दो, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, विटामिन K देना जरूरी होता है बच्चे में। तो इसमें क्या देंगे हम, विटामिन K देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन K, जो कि 1000 और 3000 इंटरनेशनल यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे पेपर में नहीं था, बट ये किसी और के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो आप इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब याद कर लो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि फॉर द लास्ट 3 महीने से 68 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम पेन अटैक्स इन द हार्ट दैट लास्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट से उसके पेन हो रहा है हार्ट में, ठीक है, और पेन अटैक से वो सफ़र करती है। पेन अटैक्स अकर इन रिस्पॉन्स टू द स्लाइटेस्ट फिजिकल एक्सर्शन। जैसे ही वो हल्की सी एक्सरसाइज भी करती है, मतलब हल्का सा भी उसने थोड़ा फुर्तीला वाला काम किया, उसके अटैक स्टार्ट हो जाता है, उसके पेन स्टार्ट हो जाता है। और वो नाइट्रोग्लिसरॉन नहीं ले रही क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, इस वजह से। शी वॉज रिपीटेडली ट्रीटेड फॉर स्टमक हार्ट डिजीज एंड हैड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। तो उसके स्टमक हार्ट डिजीज़ है, MI है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना हुआ है। ECG शोज सिकाट्रिकल चेंजेस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल में उसके थोड़े बहुत दिक्कत चेंज दिखाई दिए हैं। सिस्टोलिक मरमर आ रहा है अवोल्टा के ऊपर। तो क्या डायग्नोसिस होगा, तो भाई इसके अगर जो हमारी स्टेजेस होती हैं एंजाइना पेक्टोरिस की, क्लास 1 2 3 4, तो उसमें जो क्लास 3 होती है वो होती है जब हमारा जो बंदा है वो 100 से मान लो 150 मीटर में चलने में उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, पर वो चला तो सही, वो 100 से 150 मीटर चला तो सही, लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा ही फुर्तीला, मतलब थोड़ा सा ही फुर्तीला काम करते हैं, उसके पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लास 4 में क्या होता है कि बहुत, मतलब बेड पे बैठी है, खड़े होने में पेन अटैक, खड़े होकर दूसरे बेड पे जाने में पेन अटैक, तो वो हो जाएगा क्लास 4। और इसके एंजाइना स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है, क्योंकि इसके नाइट्रोग्लिसरीन इसको दे नहीं सकते, तो हम ये बता नहीं सकते कि भाई नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद वो ठीक हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर ठीक नहीं होती है नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद तो हम उसका आंसर मारते हैं अनस्टेबल एंजाइना। उसका क्या आंसर मारते हैं, अगर नाइट्रोग्लिसरीन हमने किसी पेशेंट को दिया फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी उसके पेन हो रहा है हार्ट में, तो हम उस क्वेश्चन का मारते हैं अनस्टेबल एंजाइना। उसका क्या मारते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन यहाँ पे हम उसको दे नहीं सकते नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि वुमेन पहले ही कह रही है भाई मेरे सिर दर्द हो जाएगा अगर मैंने ये टेबलेट खाई, तो हम पता नहीं लगा सकते ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन उसके जो चलने पे उसको पेन हो रहा है, स्लाइटली एक्सरसाइज में भी पेन हो रहा है, स्लाइटली एक्सर्शन में भी पेन हो रहा है, तो इससे पता लगा सकता है भाई ये क्लास 4 है। अगर क्लास 2 कब होता है आंसर, जब वो 700 से 800 मीटर पे उसको पेन स्टार्ट हो जाए। अगर 700-800 मीटर चला है, उसके बाद उसके पेन हो रहा है, फिर वो रेस्ट कर रही है, फिर थोड़ा चल रही है तब। और क्लास 3 में 100 से 150 मीटर में ही वुमेन को चलने के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है, और 4th में तो बिल्कुल थोड़े से ही चलने में पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा आया तो नहीं है, बट फिर भी मैं बताना कोशिश करती हूँ बताने की, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, बट आप समझ सकते हो उसको। उसके जो पेन है वो हर 3 से 4 और 7 मिनट पे हो रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में मैंने इसकी क्या पहचान बनाई थी, क्योंकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि ये डिसकोऑर्डिनेटेड लेबर एक्टिविटी है या प्राइमरी वीकनेस ऑफ लेबर एक्टिविटी है, क्योंकि ज़्यादातर है वो इन्हीं क्वेश्चंस पे हम अटकते हैं कि ये आंसर मारे या फिर ये आंसर मारे। तो आप देख लो, जब भी 3 वैल्यू लिखी हो ना, जैसे 3 4 7 मिनट, ऐसे 3 तरीके से लिखा हो, तो हमेशा उसका आंसर डिसकोऑर्डिनेटेड लेबर एक्टिविटी होता है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे याद किया था। बाकी जो है आप इसमें क्योंकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर
पा रही थी, या तो मेरे को नॉलेज नहीं होगी इस क्वेश्चन की, या फिर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, पर इसमें जो है डिसकोऑर्डिनेटेड लेबर एक्टिविटी तभी आंसर माना जब 3 वैल्यू ऐसे लिखी हूँ, ठीक है। बाकी वरना प्राइमरी वीकनेस ऑफ लेबर एक्टिविटी आप आंसर मारोगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है डिसकोऑर्डिनेटेड लेबर एक्टिविटी। द बेबी जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, हेड प्रेस्ड एंट्रस कैविटी की तरफ है, हाइपरटोनस ऑब्जर्व्ड हो रही है। देख ऊपर से तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पर जो सर्विक्स की डायलेशन है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर की हुई है। 12 घंटे से उसको पेन चल रहे हैं और यूट्रस सिर्फ 3 सेंटीमीटर डायलेटेड हुआ है। 12 सेंटीमीटर भाई, 12 घंटे से अगर किसी को पेन हो रहे हैं तो उसका 4-5 सेंटीमीटर तो उसका डायलेट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर आवर की रेंज से जो है वो सर्विक्स डायलेट होती है, पर इसके 12 घंटे से डायलेट हो रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों का, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, डिसकोऑर्डिनेटेड लेबर एक्टिविटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगले वाला क्वेश्चन ये किसी के पेपर में नहीं आया था, तो पर इसको हम वैसे याद कर लेते हैं, अगर बाई चांस आ गया तो क्या करेंगे, क्या आंसर लगाएंगे इसका। ट्रिपोनिमा पैलेडियम है, मतलब साइफिलिस हुआ है बंदी के। साइफिलिस में क्या होता है भाई, साइफिलिस में जो है अल्सर्स दिखते हैं हमारे और वो पेनलेस होते हैं, तो इस क्वेश्चन की पहचान ही ये है, जब भी पेनलेस अल्सर बोलते हैं ना तो लेस, साइफिलिस लेस, इसमें भी साइफिलिस में भी लेस आता है और पेनलेस में भी लेस आता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी कहीं भी पेनलेस अल्सर्स दिखाई देते हैं जेनाइटल ऑर्गन पे या फिर कहीं भी, तो पेनलेस, लेस मीन्स साइफिलिस, तो इसका आंसर होगा साइफिलिस। और साइफिलिस के लिए टेस्ट करते हैं हम ट्रिपोनिमा पैलेडियम टेस्ट, ऐसे इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगले वाला क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड नहीं था, ये हमारे पेपर में नहीं आया था, पर फिर भी मैं इसका थोड़ा कोशिश करती हूँ। इसका बंदा है, एक बंदी है, एक बेबी है, बंदा बंदी, एक बेबी है विद द गेस्टेशन टर्म ऑफ 30 वीक्स, वॉज बोर्न विद द बॉडी वेट, इतना वेट हुआ है उसका पैदा। 3 आवर्स आफ्टर बर्थ, 3 घंटे बाद उसके एपनिया स्टार्ट हो गया, गैस्पिंग स्टार्ट हो गई, ब्रीदिंग लेने में उसको दिक्कत हो रही है। सिल्वरमैन स्कोर है 9, एडिशनल ऑक्सीजनेशन, उसको ऑक्सीजन दी है उसको, पर उससे अफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है, तो हमने ABC मतलब एयरवे हमने उसको प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन B ब्रीदिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। अब उससे काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम CPV प्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे लंग्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा PPV, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे था। अब आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, ये मेरे पेपर में आया था। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि उसने दांत निकलवाया है सेकंड मोलर, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसके फेरेंजियल पेन हो रहा है, लेफ्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, हाइपरेमिया हो गया है लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैलेटाइन आर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉन्सिल्स टूवर्ड्स द मिड लाइन, जो टॉन्सिल्स है वो मिड लाइन की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं और ऊपर की तरफ हुए हैं। रिम फ्लॉन्ट्स पेनफुल है, पाल्पेशन है, तो ओटोलैरिंजो ENT वाले डॉक्टर के पास वो गई है, डायग्नोज विद पैराटोन्सिलर एब्सेस। क्या डायग्नोज किया है, उसके पैराटोन्सिलर एब्सेस है। तो क्या रूट ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड होगा भाई, दांत के थ्रू। अगर उसने दांत निकलवाया उसके बाद उसके दिक्कत हुई है, तो भाई दांत के थ्रू ही तो फैला होगा वो इन्फेक्शन, जहाँ से दांत निकलवाया वहीं की ब्लड वेसल्स तो ओपन हुई होंगी, तो वहीं से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओडेंटोजेनिक। क्या रूट ऑफ इन्फेक्शन है, इसका आंसर होगा ओडेंटोजेनिक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन जो है ये, इसमें मैं क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन खोलती हूँ हमेशा मेरी नज़र सिर्फ इस लाइन पे जाती है। इसका मतलब है हाइपरटेंसिव बिलियरी डिस्काइनेसिया, मतलब कि बिलियरी जो है वो मतलब जो हमारा गोल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं आ रही उसमें, जैसे कि बाइल्स फिर सीक्रेट करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना चाहिए ना भाई, कि हाँ भाई पुश करे बाइल को, बाइल आगे जाए, पर वो हाइपरटेंसिव मतलब वो टेंस्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, ठीक है। लेकिन डिस्काइनेजिया है, लेकिन उसमें कोई मोटिलिटी नहीं है, डिसमोटिलिटी है उसमें, ठीक है। डिस्काइनेजिया मतलब डिसमोटिलिटी, तो मतलब उसमें डिसमोटिलिटी है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। तो जो जब ज़्यादा टेंस्ड है, ज़्यादा स्पाज्मिक है, तो एंटी स्पाज्मोटिक देंगे हम, क्या देंगे हम उसको देंगे एंटी स्पाज्मोटिक। डिसमोटिलिटी है तो मोटिलिटी के लिए हम कोलरेटिक्स देंगे, क्या देंगे मोटिलिटी के लिए, कोलरेटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटी स्पाज्मोटिक एंड कोलरेटिक्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन होता है डीरियलाइजेशन होता है, मतलब उल्टा दिखता है, मतलब जो रियल इमेज होती है उससे उल्टी दिखती है उसको, इमेजिनेशन उसकी बिल्कुल उल्टी होती है, ठीक है। जैसे कि बेड रखा हुआ है तो बेड उसको उल्टा दिखेगा, फैन उसको नीचे की तरफ दिखेगा, वो खुद उसको ऊपर दिखेगा, ये हो जाएगा डीरियलाइजेशन। सूडो हेलुसिनेशन उसको भ्रम होता है, पर सूडो वाला भ्रम होता है। हेलुसिनेशन मतलब खुद की बॉडी में जैसे फील करना, जैसे मेरे पैरों पे ये चल रहा है वो चल रहा है ऐसा करके, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन उसको मतलब दिखाई, उसको विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है।
और पेरिडोलिक इल्यूजन्स क्या होते हैं, जिसमें कि जैसे कि पंखा है लेकिन पंखे को वो क्या समझेगा, ऑक्टोपस समझेगा, मतलब वो कुछ और समझ रहा है। तो सेम चीज़ उसने यहाँ समझी, जैसे कि एक लाइट फिक्सिंग हैंगिंग है फ्रॉम द सीलिंग, उसको वो क्या दिख रहा है, वो उसको दिख रहा है एक बड़ा सा ऑक्टोपस। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पेरिडोलिक इल्यूजन्स, पेरिडोलिक इल्यूजन्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन रिपीट था, याद कर लीजिए। अब हमारा आ जाओ अगला क्वेश्चन। तो मैंने ऑप्शन देके थर्ड डिग्री ब्लॉक है। ठीक है, हमारा थर्ड डिग्री ब्लॉक कब होता है भाई, थर्ड डिग्री ब्लॉक होता है जब पी वेव और क्यू आर एस वेव दोनों का आपस में संबंध नहीं होता, मतलब दोनों की आपस में बनती नहीं है। पहले पी आनी चाहिए, उसके बाद क्यू आर एस आनी चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं होता। पी के बाद वापस पी भी आ सकती है। कोई इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, पी और क्यू आर एस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन टूट गया है, तब होता है कंप्लीट थर्ड डिग्री ब्लॉक। ठीक है, सेकंड डिग्री ब्लॉक में तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों होते हैं, जिसमें कि पी मतलब कि एक बार मिस हो जाती है पी वेव, या फिर एक बार क्यू आर एस वेव एब्सेंट हो जाती है, और फिर पी रेगुलर है इरेगुलर है ऐसे देख के हम बताते हैं सेकंड डिग्री ब्लॉक। ठीक है, एक्स्ट्रा सिस्टोल में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। इसमें लिखा हुआ है एक 16 ईयर ओल्ड बॉय है, डिजीनेस है, हार्ट रेट इतना है, हिज ब्लड प्रेशर इतना है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, मतलब शॉक की तरफ है बंदा। द हार्ट बॉर्डर्स जो हैं उसके वो इनलार्ज्ड नहीं है, हार्ट साउंड्स लाउड है, क्लियर है, ईसीजी शोज पी वेव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम क्यू आर एस, मतलब पी वेव का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है किसके साथ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ। पी वेव डिसकोऑर्डिनेट हो चुकी है क्यू आर एस के बाद, मतलब कि जय श्री राम जय श्री राम। जैसे कि इसमें ये पी वेव है, ठीक है, पी के बाद क्या आता है हमारे क्यू आर एस आती है, फिर टी आती है, फिर हमारी पी आती है, फिर क्यू आर एस आती है, फिर हमारी टी आती है, फिर पी आती है, ऐसे आता है। पर इसमें क्या आ रहा है, थर्ड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, ये पी है, फिर से पी आ जाएगी, फिर क्यू आर एस आ सकता है, पी आ सकती है, फिर क्यू आर एस आ सकती है। ठीक है, तो मतलब पी और आर इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पी के बाद पी का आर के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने 23 क्वेश्चन करा दिए हैं, इस वीडियो में मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको पसंद आए और अगर आप और क्वेश्चन मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीटेड था किसी और के क्वेश्चन पेपर में, मेरे में नहीं था। A 26-year-old pregnant woman was hospitalized into the intensive care unit at 36 weeks पे वो आई है, उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है आईसीयू में। ऑफर प्रेगनेंसी, उसके कंप्लेन क्या है, उसके इंटेंस हेडेक हो रहा है फ्रंटल रीजन में, उसके बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। एग्जामिनेशन के अधिकार है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके हाइपरटेंशन हो रखी है, उसका पल्स जो है 85 है, रेस्पिरेशन 15 है, बॉडी टेम्परेचर कम है, उसके एडिमा, मतलब कि उसके एडिमा ऑन द लिप्स, मतलब उसके एडिमा भी आ रहा है भाई। फिर उसके फीटल हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, फीटल हार्ट रेट ठीक है नॉर्मल है। वुमेन डेवलप्ड एन अटैक ऑफ जीटीसी, मतलब उसके जीटीसीएस भी फीचर्स आ रहे हैं, मतलब उसके प्री एक्लेम्सिया, उसके एक्लेम्सिया, उसके अब तो फीचर आ ही चुके हैं, उसके सीजर आ ही चुका है, तो इसको प्री एक्लेम्सिया नहीं बोलेंगे, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं सीजर आने से पहले। लेकिन जैसे ही उसको सीजर आ जाता है हम उसको बोलते हैं एक्लेम्सिया, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को एक्लेम्सिया बोलते हैं, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। जब सीजर आ जाए तो एक्लेम्सिया बोलते हैं, और बिना प्रेगनेंसी के हाइपरटेंशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। पर इसमें ये 3 फीचर्स दिख रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया में हम कौन सी ड्रग देते हैं, एक्लेम्सिया में हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। प्री एक्लेम्सिया में हम दे सकते हैं उसको भाई, उसको कोई और ड्रग दे दो, सोडियम वेलप्रोइड, डायज़ेपाम कुछ दे सकते हो, बट इसके एक्लेम्सिया इसलिए से मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ 45-year-old वुमेन वाज रेफर्ड फॉर अ कंसल्टेशन साइकियाट्रिस्ट ड्यू टू कंप्लेन ऑफ abdominal पेन एंड डिस्कम्फर्ट दैट अकर इन इमोशनली स्ट्रेचिंग स्टेज, मतलब कि जब भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उसके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो उसके क्या होता है, उसके पेट दुखने लग जाता है और कंफर्टनेस आ जाती है, पर उसके कोई चेंजेस नहीं होता जीआई ट्रैक्ट में, कोई मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई स्टीनोसिस नहीं होता है, बट उसके
abdominal पेन स्टार्ट हो जाता है जब वो इमोशन होती है। तो यहाँ पे देखो उसके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई है भाई, जब ब्रेन में ज़्यादा वो टेंशन लेती है, ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो उसके एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बोला गया है उसको द कंप्लेंट्स फर्स्ट अरोज ओवर 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उसको ये स्टार्ट हुई थी सीवियर अल्कोहल पॉइजनिंग से। द पेशेंट हैज़ बीन रिपीटेडली विजिटिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हु वर अनेबल टू फाइंड एनी, मतलब वो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट के पास जाती रहती है पर उसको कोई, उस डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं लग पा रहा भाई, उसके GIT में दिक्कत है ही नहीं, कोई पैथोलॉजी है ही नहीं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे भाई क्या दिक्कत है उसको। वो कोई भी उसको थेरेपी देता है, कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है, वो इनफेक्टिव ही होती है। तो ये किस चीज़ की कंडीशन है भाई, उसके इमोशनल स्ट्रेस से हो रही है और उसके GIT में कोई पैथोलॉजी मिल ही नहीं रही थी, तो कोई पैथोलॉजी मिल ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है, वो उसको लगता है ऐसा, उसके ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो ये क्रॉप में अभी आएगा, आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई कराओ तो मैं ज़रूर कराऊंगी। तब तक के लिए